Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 1st August 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. Now आज का नया मंथ है, आज से इंश्योर कि आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो जो भी बैकलॉग्स है. अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट हैव हैड इन द प्रीवियस मंथ्स. प्लीज इंश्योर दैट यू डोंट हैव एनी इन दिस मंथ. वॉच इट रेगुलरली एवरी सिंगल डे. इज दैट राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट. आज का जो दिन है 1st August, what is it celebrated as? So important days mainly asked in questions of CLAT, of AILET, sorry. तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको वर्ल्ड वेब डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे है, दैट इज WWW जो कहते हैं, राइट? इस दिन में आविष्कार हुआ था इसका. So that is why it is celebrated on August 1st. Now who had invented this particular thing? It was Tim Berners-Lee. He was a British scientist who invented World Wide Web in 1989 at CERN, which is a European center. ठीक है? So ये क्या है? WWW क्या होता है? Now this is a system of interconnected documents, resources जो आप access कर सकते हो via the internet, right? So we know we've used all of this. Users share कर सकते हैं, find कर सकते हैं, interact कर सकते हैं information that is available on the web, right? Now let's quickly see आज का जो articles है उसके बारे में. तो पहला आर्टिकल हम जो देख रहे हैं that is with regard to a conference. Okay, now what is this conference about? This conference is mainly celebrated or taken because of the 100th birth anniversary of Dr. M.S. Swaminathan. तो conference किया जा रहा है 3 दिन का from August 7th onwards. Now let's quickly see what exactly is this conference about. This is a science conference and this is organized by the M.S. Swaminathan Research Foundation. M.S. Swaminathan Research Foundation. कहाँ पे ये conference होगा? This conference will take place in ICAR, which is the Indian Council of Agricultural Research, और इसका headquarters कहाँ पे है? It is in New Delhi. तो यहाँ पे वो conference होगा. Now, what exactly is the theme of the conference? Biohappiness. Now, this is a concept that has been coined by M.S. Swaminathan, और ये फोकस करता है बायोडाइवर्सिटी यूज पे, फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने के, फार्मर्स की इनकम एनहांस करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करने के लिए, एज वेल एज रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी. तो एक पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने निर्माण किया है कॉल्ड एज बायो हैप्पीनेस. इस कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं 30 इंटरनेशनल स्पीकर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग, 120 एक्सपर्ट्स विल बी देयर, 300 फार्मर्स भी यहाँ पे आएंगे. एंड द एम of this is to ensure or to integrate traditional agricultural knowledge into modern science. तो traditional और modern science का integration ensuring कि हमारी ecology को sustain करे. Like we have a sustainable ecology also that we are promoting. Now let's understand more about the awards and initiatives announced during this conference. तो एक award दिया जाएगा called as M.S. Swaminathan. And what is this award for? This award is for food and peace. ये global award है. Okay, so this is by the M.S. Swaminathan Research Foundation and the World Academy of Sciences, जो PM मोदी देंगे 7th को, and we're going to see who gets that and what is the cash prize that is going to be there. It will be $25,000. Now remember, this is a global award that will be given for food and peace. Second, एक initiative होगा AgriTech Grand Challenge. ये इनिशिएटिव किसका है? MSSRF, that is M.S. Swaminathan Research Foundation and Social Alpha. Okay, remember ये ऊपर वाला था World Academy of Science, ये वाला है Social Alpha. So इन दोनों का joint initiative है where they are offering a grant of 1 crore rupees. और ये grant से क्या होगा? Mainly, you know, we've got startups or we've got smaller industries promoting technology in agriculture, उनके लिए है. So the early stage innovations for pilot projects या agri-tech solutions. Okay, so agricultural solutions के लिए टेक्नोलॉजी का यूज जो करते हैं उसके लिए यहाँ पे 1 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा. So this is with regard to the conference. Now we will see who was Swaminathan, right? Because इसके बारे में हमने mention किया है, तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो. Recently he passed away.
So remember, he is called as the father of green revolution in India. Now remember, father of green revolution world की बात करें, he is Norman Borlaug, ठीक है. But if you see MS स्वामीनाथन ने इंडिया में डेवलप किया था हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस, एंड ही स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. एंड ही ऑल्सो हेल्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, दैट्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इनको अवार्ड भी दिया गया था एज द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987 बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. हम देखते हैं कि 1960s में और यू कैन से राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि फैमिन्स और सब बहुत हो रखे थे, ड्राउट से लोगों के पास खाना नहीं था, मैल न्यूट्रिशन से लोग मर रहे थे. सो इट इज अ वेरी सैड स्टेट फॉर इंडिया. एंड इन दिस बैकग्राउंड वी सी कि MS स्वामीनाथन ने हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, एंड दिस हेल्प टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बाय द 1970s. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हम देखते हैं ही इज ऑल्सो चेयर्ड द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम 2004 to 2006. हमने कॉमनली देखा है MS स्वामीनाथन रिपोर्ट या कमिटी वाज फॉर्म्ड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स. जैसे आपने MSP सुना होगा, MSP का फॉर्मूला सुना होगा, राइट? तो इनके ये था कि ही एडवोकेटेड पॉलिसीज टू एंश्योर कि फार्मर्स का वेलफेयर हो, एट द सेम टाइम फूड सिक्योरिटी भी हो. फर्दर हम देखते हैं बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे इनको मिले हैं, लाइक द भारत रत्न which was in 2024, which is the highest civilian award given in India. Then there was Ramon Magsaysay Award. Ramon Magsaysay Award is Asia का सबसे बड़ा अवार्ड. तो जैसे it's said as the Nobel Prize in Asia. तो ये Ramon Magsaysay is like the erstwhile or former president of Philippines. इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है. तो बहुत सारे इंडियंस को ये मिला है, and one such is MS स्वामीनाथन. Further, Albert Einstein World Science Award 1986 and others. So ये important awards जो इनको मिले हैं. Further, he is also called as the father of economic ecology. Father of green revolution सबको पता है. Father of economic ecology क्या होती है? Now this is he wanted to link agricultural productivity and ecological sustainability. इसीलिए हमने bio happiness के बारे में देखा था. तो agriculture और ecology एक दूसरे को कैसे support कर सकते हैं, align कर सकते हैं. इसीलिए he is also called as father of economic ecology. He also was a member of the parliament in Rajya Sabha from 2007 to 13 और उन्होंने women's rights in agriculture के लिए भी support किया था. Can you tell me जो international year for women farmers ये कौन से year designate करता है UN? UN designates which year as women in agriculture or women farmers? Please use the comment section to answer. Let's now proceed to the next article. अगला जो article हम देखते हैं, it is with regard to a station that will be launched or that will be created in Ladakh. Okay, so now what exactly is this station that has been launched already? The name of the station or name of the mission that we call is Human Outer Planet Exploration Mission, जिसका short form है HOPE. Now who is it launched by? ये space related कुछ हो सकता है, outer planet exploration, but remember this is not ISRO. ये एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप जो है प्रोटोप्लैनेट. ओके, सो प्रोटोप्लैनेट इज अ बैंगलोर बेस्ड स्पेस के लिए स्टार्टअप जो इन्होंने ये लॉन्च किया है. नाउ वेयर हैव दे लॉन्च्ड इट? दे हैव लॉन्च्ड इट इन अ प्लेस कॉल्ड सोकर व्हिच इज इन लद्दाख. Now what is the reason for selecting Sokar? What is the reason for selecting this place in Ladakh? It is because ये जो region है एक ऊंचे जगह पे है, high altitude है, it is cold desert environment और ये mimic करता है या एक similar situation create करता है for moon and Mars. तो moon और Mars की conditions जैसे हैं वैसे conditions यहाँ पे create करता है, mimic करता है, इसीलिए इस location को select किया गया है. Now what is the purpose of this? हम future missions plan कर रहे हैं to the moon and Mars. Can you tell me which year are we planning our missions to the moon and Mars? Use the comment section to answer. ये हमारे future plans होंगे. So इसीलिए हम हमारा जो trading होगा या हमको जो research करना होगा, हमारी understanding को broaden करने के लिए we have had the HOPE mission. So ये 10 दिन का एक isolation missions होगा. Selected crew ही यहाँ पे participate करेंगे, यानी कि सबको के लिए नहीं है ये, and
इसके हम साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज करेंगे, ह्यूमन कैसे अडेप्ट कर सकते हैं इस जगह पे, ये टेस्ट करेंगे बाय दिस होप मिशन। ओके, पार्शियली फंड किया जा रहा है इसरो, ओके, द डेवलपमेंट ऑफ होप स्टेशन। तो याद रखना कि इसरो इज ऑल्सो सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो ये था होप मिशन के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने पुल अप किया है तेलंगाना के स्पीकर को बिकॉज उन्होंने डिफेक्शन पे कुछ एक्शंस नहीं लिए हैं। तो उन्होंने बोला है तेलंगाना के स्पीकर को कुछ एक्शन ले लो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस केस अबाउट। 10 BRS MLAs गए कांग्रेस के साइड, ठीक है। सो आइडियली अगर कुछ मेंबर्स शिफ्ट होते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी, तो उनको डिफेक्शन के चार्जेस लगते हैं, जिसके कारण दे विल हैव टू विकेट द सीट्स। तो इसके क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे लिखा है, ये सब हम अभी देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो हम देखते हैं कि 1970s में बहुत सारे एमपीज एक पार्टी से दूसरे पार्टी शिफ्ट करते थे फॉर विद द हेल्प ऑफ ब्राइब्स, राइट, पैसों के लिए लालच में या करप्शन करके they used to shift parties. Now देखो, these MPs are directly elected by the people, they are voted by the people. तो हमारा अगर allegiance है, हमको एक पार्टी के आइडियल्स या उनकी पॉलिसीज पसंद है, तो हम उस मेंबर के पार्टी को वोट करेंगे या जो उस पार्टी का मेंबर है उसको वोट करेंगे, राइट। बट अगर तुम शिफ्ट करते हो, तुमने लोगों को धोखा दिया है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी सी इज वेयर एंटी डिफेक्शन लॉ वाज नीडेड टू कम, एंड ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने लेके आई थी, ओके, इन द 1985 के आसपास। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हम देखते हैं कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985, और ये एक नया शेड्यूल भी ये किया था, ऐड किया था, कॉल्ड एज द 10th शेड्यूल। द एम ऑफ दिस वाज ताकि पॉलिटिकल डिफेक्शंस को हम बंद करें बाय लेजिस्लेचर्स एंड गवर्नमेंट स्टेबल हो, पार्टी में डिसिप्लिन हो, इसीलिए ये लेके आए थे, बिकॉज देन शुड नॉट बी सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी, राइट। Now when can we disqualify legislators? MPs को या MLAs को कब disqualify कर सकते हैं? We can do that when they voluntarily give up the membership of a party, okay, यानी कि वो पार्टी छोड़ देते हैं, वो vote or abstain in the house contrary to the whip without prior permission, यानी कि वो पार्टी के खिलाफ हैं without prior permission। Independent member अगर join होता है right after election, तो again he can be disqualified। A nominated member अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है, so 6 महीने के पहले it's fine, but joins a political party after 6 months of being nominated, तो he also can be disqualified। तो ये आपको याद रखना है कि कब एक MPs disqualify हो सकते हैं under defection charges। So here कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस इज द मर्जर क्लॉज। एक्चुअली बिफोर मर्जर क्लॉज देयर वाज अ स्प्लिट क्लॉज आल्सो, ठीक है। तो मान लो कि 1/3 ऑफ देम आर गोइंग फ्रॉम पार्टी ए टू पार्टी बी, 1/3 ऑफ द पार्टी के लोग जा रहे हैं। तो पहले तो ये भी अलाउड था, बट 91st अमेंडमेंट के कारण, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये वाला क्लॉज कैंसिल कर दिया कि स्प्लिटिंग अलाउड नहीं है। इट इज मोर और लेस लाइक डिफेक्शन ओनली। यहाँ पे एक जा रहे थे, अभी बहुत लोग जा रहे हैं, राइट। बट इन्होंने एक एस्पेक्ट ऐड किया कॉल्ड एज द मर्जर क्लॉज। यहाँ पे 2/3 अगर एक पार्टी का मर्ज होता है दूसरे पार्टी का, तो ये अलाउड है, तो ये जेन्युइन मर्जर है और इसको चेक भी किया जा सकता है, ओके। सो दिस शुड बी अ जेन्युइन मर्जर एंड नॉट एन इंडिविजुअल डिफेक्शन। तो इन लोगों को 2/3 ऑफ द पार्टी अगर मर्ज करती है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एंटी डिफेक्शन और इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफेक्शन। नाउ हु विल डिसाइड कि ये डिफेक्शन था या नहीं? दिस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टेड हाउस, ठीक है। सो इसीलिए तो तेलंगाना के स्पीकर को बोला है कि क्या कर रहे हो, ये 10 BRS शिफ्ट हो गए हैं कांग्रेस, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीकर के पास ये पावर है और ये स्पीकर का जो डिसीजन है ये रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू एंड दिस वाज थ्रू अ केस कॉल्ड एज किहोतो
होलोहान वर्सेस जचिलू 1992 का। तो इसके पहले जुडिशियल रिव्यू वाज नॉट अलाउड, बट 1992 में बोला कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर का ये डिसीजन चेक भी कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये था पूरा आर्टिकल एंटी डिफेक्शन के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है लैंग्वेज एंड डिवीजन ऑफ द स्टेट्स के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। तो तमिलनाडु के गवर्नर है, यहाँ पे आप देख सकते हो R.N. रवि। ये कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है या लिंग्विस्टिक पॉलिसीज या लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स ये अलाउड नहीं होना चाहिए। ओके, ही इज सेइंग दैट हैज टर्न्ड द पॉपुलेशन इनटू सेकंड क्लास सिटीजंस। ही इज क्रिटिसाइज्ड द लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स। लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स का मतलब है जब लैंग्वेज के रीजन की वजह से यू आर डिवाइडिंग द स्टेट्स, ओके, लाइक क्रिएटिंग अ रीजन फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल, क्रिएटिंग अ रीजन फॉर मारवाड़ी स्पीकिंग पीपल, क्रिएटिंग अ रीजन फॉर तमिल स्पीकिंग पीपल। तो जब आप ऐसे डिवाइड करते हो इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया में क्या हुआ था एंड हाउ वर द स्टेट्स फॉर्म्ड, ओके, वी आर गोइंग टू सी। सो वी आर गोइंग टू सी द बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था, we see that we had many such provinces, around 560 provinces थे, अलग अलग थे। तो हमको merging करना था, we needed to create these boundaries, right? So colonial era provided colonial era provincial boundaries, they were not based on language। इन्होंने boundaries तो बनाए but not based on language। तो कौन से थे? 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, it created union of states और 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फर्स्टली फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि हम देखते हैं हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जहां पे एक रूलर या किंग राज्य करता था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस लाइक दिल्ली, कुर्ग, त्रिपुरा, जहां पे छोटे प्रोविंसेस थे व्हिच इज हेडेड बाय अ चीफ कमिश्नर। और फाइनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिकॉज इट वाज आउटसाइड द मेन लैंड, राइट, एंड वहां पे मेनली ट्राइबल्स रहते थे। सो ये पार्ट्स डिवाइड किया था, दैट इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। फिर क्वेश्चन भी किया था 1949 में कि क्या हमको जो डिवीजन है ये लैंग्वेज के बेसिस पे करना चाहिए। सो देयर वाज अ कमिटी दैट वाज फॉर्म्ड कॉल्ड एज JVP कमिटी। JVP का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर 3 लीडर्स, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड्स फॉर वल्लभभाई पटेल एंड P स्टैंड्स फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये 3 लोग थे, 3 लोगों की कमिटी थी और इन्होंने बोला कि नहीं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, इसके कारण डिसइंटीग्रेशन होगा, डिवीजन होगा, राइट, अलग अलग वो जाएंगे, सेसेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और भी पार्टीशन हो सकते हैं, इज व्हाट दे थॉट। नाउ 1950s में आवाज उठने लगी कि हमको लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स चाहिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द विशाल आंध्रा मूवमेंट। ओके, विशाल आंध्रा मूवमेंट। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट एंड वी सी लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट थे कॉल्ड एज पोटी श्रीरामुलु। ओके, तो पोटी श्रीरामुलु, इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, फास्टिंग किया एंड वो मर गए। ठीक है, तो इसके कारण और भी एजिटेशन हुआ एंड फाइनली गवर्नमेंट हैड टू एंश्योर कि 1953 में आंध्र प्रदेश बने। सो आंध्र प्रदेश वाज पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, लेकिन उसको डिवाइड करना था एंड आंध्र वाज मेड एज एन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। नाउ ये एक स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट टू बिकम अ लिंग्विस्टिक स्टेट, राइट, इसके पहले कोई लैंग्वेज या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बना। तो जब ये 1953 में आंध्र प्रदेश बना, ऑब्वियसली बाकी के स्टेट्स भी आवाज उठाएंगे कि हमारे स्टेट्स या हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनाओ स्टेट्स। सो दैट वाज हैपेंड, दैट इज वाइड स्प्रेड एजिटेशन हैपेंड कि हमारे लिए भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाओ। सो वी हैड महाराष्ट्र, लाइक यू नो, बॉम्बे स्पीकिंग, गुजरात स्पीकिंग, गुजराती स्पीकिंग,
पंजाबी स्पीकिंग, ये सब भी आवाज उठाने लगे। सो देन द गवर्नमेंट थॉट कि चलो एक और कमिटी डिसाइड करते हैं कि क्या रखना चाहिए कि नहीं, एंड दे क्रिएटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी इन 1953 और इनके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस फजल अली। नाउ ही सेड कि हाँ, यू मेक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स। उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1955 में, जिसके कारण वी गॉट अ न्यू एक्ट कॉल्ड एज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस पर्टिकुलर एक्ट के कारण 14 स्टेट्स बने एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बने। नाउ एसआरसी ने यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी ने कुछ ऑब्जर्व किया, लैंग्वेज इज देयर, इट इज इंपॉर्टेंट, बट ये एक ओनली क्राइटेरिया नहीं है टू मेक अ स्टेट। ओके, ये होना चाहिए बट नॉट द होल क्राइटेरिया। यू नीड टू चेक मेनी अदर थिंग्स। यू नीड टू चेक द नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये सब भी चेक करना चाहिए व्हेन यू मेक। लैंग्वेज कैन नॉट बी द सोल बेसिस यू आर क्रिएटिंग इट। बैलेंस्ड रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन लैंग्वेज अलोन। फर्दर और भी 1950s के बाद, अब जब 56 में लॉ आया, 60s में और भी पुश हुआ कि मेक बेसिस ऑन लैंग्वेज, जैसे कि बॉम्बे स्प्लिट हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्प्लिट हुआ इनटू महाराष्ट्र विच इज मराठी स्पीकिंग एंड गुजराती स्पीकिंग विच इज गुजरात। फर्दर हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स भी डिवाइड हो गए इनटू पंजाब एंड हरियाणा इन 1966। बट नेहरू ऑफ कोर्स ही अपोज दिस यूनिलिंगुअलिज्म, मतलब एक लैंग्वेज का स्टेट ही अपोज, बिकॉज वो उनको डर था कि ये यूनिटी के को अफेक्ट करेगा, ये और भी डिवाइड होंगे। सो दैट वाज द प्रॉब्लम दैट वी सी। Now let's understand इसके इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इसके कारण लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनने के कारण क्या इसमें दरार आ गई थी या इसमें सेपरेशन ज्यादा हुआ है? लेट्स अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं कि क्रिटिक्स बोलते थे कि यस, लिंग्विस्टिक स्टेट्स विल क्रिएट सेसेशन, विल क्रिएट सेपरेशन, राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं एग्जांपल्स। सो द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2008 में उन्होंने रिपोर्ट दिया और कहते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट द रीजन व्हाई वी हैव दिस, बट अगर आप देखते हो मेजर सेसेशनिस्ट मूवमेंट जैसे कि नागालैंड में है, पंजाब में द खालिस्तानी है जो मूवमेंट है, या तो कश्मीर की बात करें, दे आर नॉट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, यहाँ पे दे आर बेस्ड ऑन एथनिसिटी या रिलीजन या टेरिटरी। तो लैंग्वेज इज नॉट द रीजन व्हाई स्टेट्स आर फाइटिंग और क्रिएटिंग सेपरेशन। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है कि नो, दैट इज नॉट द रीजन। तो टी.एन. रवि यहाँ पे कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ बेसिस की फाइट्स हो रहे हैं, बट आर्टिकल में इसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया गया है। इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट surrogacy. Okay, so it's saying before the Supreme Court, questions over the age gap in surrogacy law. Now I hope you understand what is the meaning of surrogacy. Surrogacy का मतलब है जब parents, okay, जब two people, male female, they are not able to have a child of their own, तो ये किसी और का मदद लेके, okay, they are becoming parents. ठीक है? So when it could be many reasons why they cannot conceive. It could be maybe health reasons, okay, or any other reason why they are not able to conceive. तो इसीलिए इन्होंने किसी और women की मदद से they are able to produce. Okay. Now, India में what do we have a law with regard to this? We're going to understand all about it and we'll understand this case कि ये केस क्या कहता है. So firstly, surrogacy के laws क्या है? Surrogacy Regulation Act था 2021 and Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021. तो ये दो laws हैं surrogacy से related और जनवरी 22 में ये enact हुए थे. They came into force. इसमें बैन किया है commercial surrogacy. Now what do you mean by commercial surrogacy? यहाँ पे आप किसी को पैसे देकर okay surrogacy perform करते हो. That is called as commercial surrogacy. Now why is this not allowed in India? It is because पैसों से लेके mainly the poor people, okay, जो poor औरतें हैं, जो especially the vulnerable marginalized sections हैं, उनको यहाँ पे आप उनका womb, उनका गर्भ खरीदोगे, right? You're going to pay her for that, and this will lead to more exploitation of the sections of certain sections of the society. इसीलिए इसको बैन किया है. तो क्या surrogacy totally banned है? The answer is no.
surrogacy is allowed in basis of altruistic surrogacy. Now you know what the word altruism means. Altruism का मतलब है selfless, right, on goodwill. तो altruistic surrogacy मतलब जब पैसे नहीं लेते हैं, apart from of course medical requirements होती है, insurance होता है, तो वो सब चीजें तो होती है, which of course the parents have to pay. But otherwise you're not paying her for the service. You are not paying her for carrying your baby. Okay, so that is what is altruistic surrogacy, और वो चीज allowed है. Now obviously बात है कि nobody would want to have a kid who is उसको कोई अगर monetary gains नहीं मिल रहा है, nobody would want to bear the 9 months journey and the post pregnancy and so on. तो इसीलिए ये allow किया है altruistic surrogacy, because then the poor people are not getting money out of it and they will not opt for it. But of course there are loopholes in India that could be the same case of the same, but हमारे इंडिया में लॉ है, तो अगर पकड़े जाओगे तो प्रॉब्लम में आएंगे. Okay, so it lays down the eligibility criteria and age limits. क्या ये जो लॉज दिए गए हैं ऊपर ना, ये कहते हैं कि कौन ऑप्ट कर सकता है surrogacy. तो कोई भी पेरेंट ऑप्ट नहीं कर सकता. There is some age criteria. You should be from certain age. आपने 5 साल ट्राई किया है, बच्चा नहीं हुआ, okay, then only you can go for it. Okay, so all of these are the criteria that are mentioned. तो हम एक बार देखते हैं कि criteria क्या है. Married woman should be between 23 to 50 years and married man should be from 26 to 55 years. अगर कोई single woman ऑप्ट करना चाहती है, maybe she's a widow or she's divorcee, only in that case, ठीक है, she has been a widow or she's been a divorcee, not unmarried woman. तो ये should be from 35 to 45 years. Remember, unmarried women, are they included? The answer is no. It's widow divorcee है तो ठीक है, लेकिन unmarried है, शादीशुदा नहीं है, तो वो बच्चा नहीं सरोगेसी के थ्रू नहीं पैदा कर सकती. एंड ये एक सेपरेट केस है जो एक सेपरेटली चैलेंज किया है इन द सुप्रीम कोर्ट. बट ये इस केस में सिर्फ एज रिस्ट्रिक्शंस के बारे में था. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, इट वाज अ कपल जिन्होंने सरोगेसी के लिए ट्राई किया. इट वाज अ फेलियर. व्हेन दे ट्राइड फॉर द सेकंड टाइम, बाय देन द लॉ केम इन 21. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप एज क्राइटेरिया के बाहर हो, देन यू कांट ऑप्ट फॉर सरोगेसी. तो वो केस लड़े, वो पिटिशंस दिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए. लाइक आगे से चलो ठीक है, ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन हमने तो पहले से ही ट्राई किया है, हम पहले से ही तो ट्राई कर रहे हैं सरोगेसी के मामले में, तो हमको इसके रूल में मत लेके आओ. रेट्रोस्पेक्टिव आप मत लेके आओ. आगे वाले केसेस जो उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्रोसेस, उनके लिए लागू करो. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको होल्ड पे रखा है. इट इज नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट इट, बट इसीलिए ये केस था. दैट इज व्हाट द केस वाज ऑल अबाउट. नाउ what is Supreme Court saying and what are the two sides of the coin? Let's see. तो एक जगह पे हम देखते हैं जो पिटिशनर्स कहते हैं कि ये जो एज लिमिट दिया गया है फॉर मैरिड मैन, फॉर मैरिड वुमेन, ये वायलेट करता है दो फंडामेंटल राइट्स. एक है राइट टू इक्वालिटी. ओके, एक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन दिया है कि why 23 to 50, why not 21 to 50 or so, right? So that is one thing. Next is age, article 21, जो अपना लिबर्टी, ये मेरा राइट है टू हैव अ किड, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इन्फ्रिंज करता है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी. व्हेन आई वांट टू बी अ फादर और अ मदर, दिस इन्फ्रिंजेस ऑन दैट राइट. बट गवर्नमेंट का दूसरा स्टैंड है. तो गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट कहता है कि गैप्स, ये जो कैप लिया है एज के लिए, इट इज मेनली कीपिंग इन माइंड द मेडिकल सेफ्टी एंड द एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, राइट. बिकॉज इफ यू सी कि ओल्ड एज में अगर कोई पेरेंट्स बनते हैं तो इट इज प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड इटसेल्फ. तो हम देखते हैं कि दिस इज मेंट टू अलाइन द नेशनल प्रोडक्टिव टाइमलाइंस. नॉर्मली यू बिकम पेरेंट्स विद इन 50 years, राइट. अब आफ्टर 50 years होंगे तो बच्चे के लिए भी यू विल नॉट हैव मच टाइम विद द किड एज वेल, एंड वी सी दैट दिस विल नॉट लीड, उसको केयर, बच्चों को केयर देने के लिए यू मे नॉट बी फिट इनफ, राइट. तो इसीलिए ये किया है. एडवांस स्टेज में हैव जेनेटिक्स ऑफ द चाइल्ड की म्यूटेशंस और सब जो होते हैं, जैसे इसलिए कहते हैं कि व्हेन यू आर यंग you need to produce, I mean with regard to the reproductive cycle, right. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि genetics of the child को affect करते हैं if the egg or the sperm that is used at a later age, as well as emotional care for the child's long term में आप होंगे नहीं, because by the time if the person is 50, okay, by the time the child
child is born and is 20 years old, you're already 70, right? तो जब वो कॉलेज में जाता है, you're already 70 and old. तो इसीलिए for a long term well-being of the child, you're not being present or you won't be active. So that is why यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये laws बनाए हैं. Is that clear? Let's proceed to the next article. Why the world needs better green technology. इस article which is given in the Hindu बताया है about technologies of energy. भी energy related बहुत सारे articles आ रहे हैं. So we're going to quickly see what this article is telling us about. तो यहाँ पे we are talking about silicon photovoltaics. Now this is used mainly solar technology में. It is currently the most widely used in solar technology. तो हम देखते हैं कि ये इन्वेंट किया था 1954 ने by Bell Labs, which was first used in satellites, and then it had number of other applications as well. But we see that it is very reliable. Okay, it is used for its reliability. लेकिन efficiency के मामले में okay 15 से 20% ही है इसका. So that is a challenge. India यहाँ पे 6 gigawatt of silicon solar cells produce करती है, but major panels कहाँ से आते हैं? Major panels China से आते हैं. So about 80% of the supply is given by China. Now what are the challenges with this particular silicon photovoltaics? हम देखते हैं कि एफिशिएंसी लो है, राइट? और इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि दूसरे ऑल्टरनेटिव्स काफी अच्छे हैं. लाइक 47% एफिशिएंसी मिलती है आपको द गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म टेक्नोलॉजी से, राइट? फिर डिमांड तुम्हारा बहुत ज्यादा है, इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड है, राइट? तो इससे ज्यादा नहीं होता. फर्दर CO2 लेवल्स आर इवन राइजिंग, राइट? तो इसीलिए रिन्यूएबल पे ज्यादा पुश करना नेसेसरी है. इंडिया की बात करें, वी आर ऑल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी. हम इंपोर्ट करते हैं 85% ऑफ द एनर्जी. वी आर वेरी एनर्जी इंडिपेंडेंट बिकॉज हमारा पॉपुलेशन भी ज्यादा है. हम डेवलपिंग कंट्री है, विकसित भारत बनना चाहते हैं, डेवलप्ड बनना चाहते हैं बाय 2047. तो हमारी डिमांड्स भी ज्यादा है. सो वी आर लुकिंग एट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. जैसे कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में दिया है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया है. लेट अस सी व्हाट आर दीज डिफरेंट इनोवेशंस. ओके, तो पहला है ग्रीन हाइड्रोजन. नाउ आई हैव एक्सप्लेन ग्रीन हाइड्रोजन इन माय प्रीवियस क्लास. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर. ग्रीन हाइड्रोजन में क्या करते हैं? H2O यानी पानी को स्प्लिट करते हैं. कैसे स्प्लिट करते हैं? इनटू H2 एंड O. ओके, एंड ये स्प्लिटिंग जो होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ना इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए यू रिक्वायर एनर्जी इन टर्न. ओके, ये H2 क्या होगा? दिस इज यूज्ड एज फ्यूल, राइट? बट ये जब स्प्लिटिंग करते हो, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी आप कहां से लेते हो? यू यूज इट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई ये जो फ्यूल बनता है, वी कॉल इट एज ग्रीन फ्यूल. ओके, और यहाँ पे देखते हो कि एमिशंस जो है ये नहीं है बिकॉज बाय प्रोडक्ट ही आपका ऑक्सीजन ही है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन, जो प्रोड्यूस किया करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, जैसे कि आप सोलर या विंड या हाइड्रो की बात करते हो. तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है कि जीरो एमिशंस है. आप देखते हो कि एमिशंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है. एंड दिस इज एनर्जी इंसेंटिव. मतलब अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपको बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है. आपको अगर स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, यू रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी ज्यादा होती है इसको प्रोड्यूस करने में, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है. Now there's one more challenge is what they do is ये हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं या कन्वर्ट करते हैं इनटू अदर सोर्सेज कॉल्ड एज ग्रीन अमोनिया एंड मिथेनॉल, जो एक्चुअल में थोड़ा इजी होता है हैंडल करने में. सो द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अदर कंपाउंड्स एंड देन यूज्ड एज फ्यूल. बट ये जब भी कन्वर्ट करते हो तभी भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो यू सी दैट दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, okay, to make these fuels. So if solar generation itself is inefficient, the entire green hydrogen value chain suffer. तो इसीलिए आर्टिकल में बोला है सोलर जनरेशन, जो सिलिकॉन फोटोवोल्टिक की बात करें, इसको हमको ज्यादा पुश करना पड़ेगा, नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे. Now there's one more alternative called as artificial photosynthesis. Do we know what is photosynthesis? Photosynthesis is a process that is used by plants to make their food, right? तो वैसे ही अगर हम यूज करते हैं
हैं कोई मेटल और ऐसा ही प्रोसेस मिमिक करते हैं, जैसे कि सन से एनर्जी लिया, उसके कारण आपने फूड बनाया या फ्यूल बनाया, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। सो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जो मिमिक करता है प्लांट्स टू कन्वर्ट सनलाइट, CO2 एंड वाटर इनटू फ्यूल। ओके, तो यहाँ पे जैसे प्लांट्स में फूड बनाते हैं, यहाँ पे आप फ्यूल बनाते हो, सेम वे यूजिंग सनलाइट, CO2 एंड वाटर। नाउ दिस इज स्टिल अ लैब बेस्ड, इसमें कुछ ज्यादा अभी तक नहीं है, बट अगर लॉन्ग टर्म ये अच्छे से डेवलप हुआ देन इट कैन बी अ गुड फ्यूचर फॉर अस, इट कैन इंश्योर बेटर सप्लाई ऑफ फ्यूल फॉर अस। ओके, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन फ्यूल बना सकता है एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग अप। तो ये था विद रिगार्ड टू ग्रीन हाइड्रोजन एंड द APS। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल बस एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है कि मसूरी के होटल्स ना, मसूरी इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, राइट, लोग टूरिस्ट के लिए जाते, टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक आदेश दिया है कि जो होटल्स होते हैं, जो स्टेज होते हैं, इनको अपडेट करना होगा कि कौन से गेस्ट, जो भी उनके गेस्ट रजिस्टर किए हैं, उनको उस पोर्टल में रजिस्टर करना होगा, जो गवर्नमेंट के पोर्टल में, उधर बताना होगा कि कौन से गेस्ट है, कहां से आए हैं एंड सो ऑन। तो व्हाई इज उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट डूइंग दैट? बिकॉज ये कुछ गाइडलाइंस दिए थे द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 2023 कि उधर का जो कैरिंग कैपेसिटी है, यू नो, अ लैंड और एन एरिया कैन ओनली सस्टेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर तुम ज्यादा उस पे फोर्स या प्रेशर लगाते हो, इट कैन सबसाइड, इट कैन wither off, right, it can affect its biodiversity। तो इसीलिए NGT ने एक रिकमेंडेशन दिया था 2023 में और बोला था कि भाई अगर तुमको उत्तराखंड के ये जो लोकेशंस है इसको मेंटेन करना पड़ेगा, करना होगा, तो आपको यहाँ पे एक रिकमेंडेशन था कि टूरिज्म जो है ये तुमको मैनेज करना होगा सही से। तो इसीलिए इन्होंने ये स्टेप दिया है। नाउ व्हाट इज दिस NGT जो हम बात कर रहे हैं? NGT जो है इट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो बना था October 18, 2010 में। It was formed under the National Green Tribunal Act 2010. Now this is mainly takes up cases for environment। तो environment law से related cases होते हैं, तो ये NGT सुनता है, ये National Green Tribunal सुनता है। So this is ensuring कि ये environment के cases fast, effective तरीके से dispose हो, so ताकि हम conservation of forest protection इस पे ज़्यादा focus करें। Now remember, original jurisdiction होता है in case of environment laws। इनके चेयरपर्सन होते हैं एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा जानकारी है एनवायरनमेंट साइंस एंड लॉ के बारे में। इसका जो मेन बेंच है न्यू दिल्ली में है और दूसरे बेंचेस हैं पुणे, भोपाल, चेन्नई एंड कोलकाता। द टाइम डिस्पोजल फॉर द टाइम टू डिस्पोज द केसेस इज यूजुअली 6 months, बट यूजुअली ये मीट नहीं करते, बट यहाँ पे एज पर लॉ 6 months के अंदर उसको खत्म करना है, बंद करना है वो केस। रिमेंबर कुछ केसेस नहीं ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अगर कुछ केसेस आते इन दो केसेस के खिलाफ या इन दो लॉज के अंदर, सो यू कैन नॉट टेक द केस, बट अदर देन दैट वाटर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, ये सब NGT सुन सकता है। क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर्ड टू द नेवी। तो यहाँ पे कौन सा एक फ्रिगेट दिया गया है इंडियन नेवी को? द नेम ऑफ द दिस नेवी, दिस वन इज द शिप इज हिमगिरी। ठीक है, ये तीसरा शिप है ऑफ द नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A के अंदर। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द नीलगिरी क्लास जो बिल्ड किया है बाय द GRSE, which is the Garden Reach Shipbuilders and Engineers that is in Kolkata। तो इन्होंने ये बनाया है। Okay, now what exactly is this? ये क्या काम करेगा? It is a frigate designed for maritime challenges। Frigates क्या होते हैं? These are smaller kind of ships that are mainly used for patrolling। ठीक है, तो यहाँ पे आप शिप देख सकते हो, it is indigenously created, इसीलिए ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, बिकॉज ये इंडिया के अंदर ही बना दिया। So indigenously created, हमने इसको ये नहीं किया। As we see, it is built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata। So ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। So इससे हम अपना imports कम करके exports, अगर इतने हम capable बने तो exports भी हम
हम बढ़ा देंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड यहाँ पे हम देखते हैं मोदी, दैट्स आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूएई प्रेसिडेंट जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नायन। तो इन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया एंड दोनों कंट्रीज ने सहमति की कि हम अपने जो रिलेशंस हैं इसको और भी ऊपर करेंगे, इसको और भी हम ज्यादा करेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज सेड बाय द टू कंट्रीज हियर। Now let's understand what exactly whether he was congratulated also. मोदी जी को congratulate किया to be the second longest serving prime minister in a continuous tenure after जवाहरलाल नेहरू। तो इनको इन्होंने congratulate किया है और आगे हमारे relations भी better होंगे। Remember the capital of UAE is Abu Dhabi as well as the currency of UAE क्या है? The Emirati dirham। Okay, Emirati dirham। तो ये था all about the India-UAE relations. Now this is all with regard to today's current affairs. I hope you have understood everything. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.